Good afternoon, everyone. I hope you're fine and in good health. And like yesterday, we are going to read this chapter, China's Way to Progress, and today we are going to finish it. We have discussed a lot of aspects of Chinese society, their economy, and their lifestyle there, and also the man force that they put stress on. And today we will see social security benefits that we discussed a little bit yesterday. So we were discussing about medical hospitals, medical facilities to the all medical and hospital treatment is entirely free for every Chinese worker or peasant. Peasant बोलते हैं किसान को. While members of their family only pay 50%. So these are the facilities like I was discussing yesterday that they give these facilities to the people living in villages and they are doing agriculture so that they can be encouraged. So all kind of medical treatment वहाँ पे फ्री है एंड जो वर्कर होता है उसका कम्प्लीटली फ्री होता है एंड द फैमिली मेम्बर्स they have to pay 50% of those medical fees. A sick worker receives his total paycheck for the first 6 months, after which he receives only 60%. So for 6 months उनको complete पे मिलती है, सैलरी मिलती है और उस ड्यूरेशन के बाद दे रिसीव 60% ऑफ देयर सैलरी. उनको 60% उनकी तनख्वाह का हिस्सा दिया जाता है. ओनली 40% डिडक्ट किया जाता है. If, however, the patient has money problems, then his company steps in and with direct assistance. And even though if they are not at all able to pay, अगर उनके पास बिल्कुल भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो पे कर सकें तो उनकी वो कंपनी जिसमें वो काम कर रहे होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पे करना. तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं वहाँ पे इस तरह के लॉज और ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि इन ऑल दीज केसेस कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन. हर कंपनी का हर इदारे का अपना एक फ़र्स्ट एड एक मेडिकल स्टेशन होता है. ओनली इन मोर सीरियस केसेस आर सिक सेंट टू हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स only those people go to hospital who are very serious and who cannot be treated in those centers. Workers retire at the age of 60. Now this is about retirement age कि कौन सी एज में मुख्तलिफ फ़ीमेल और मेल रिटायर होते हैं. तो मेल की जो है वो बेसिक रिटायरमेंट एज दैट इज़ 60. फीमेल्स retire at the age of 50 or 55 in case if they are doing clerical works. अगर वो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व नहीं होती तो वो 55 तक भी काम कर सकती हैं. The factory can sometimes agree to keep a worker on after he has passed retirement age. It depends on the factory. उस इदारे पे डिपेंड करता है कि वो उस मुलाजम को उसके रिटायरमेंट एज के बाद रखना चाहते हैं और क्या वो पर्सन रहना चाहता है. It depends on that. Pensions are related to work seniority and vary from 50 to 70% of workers' last wage. Now this is about pension rules. जितने ज़्यादा आप सीनियर होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पेंशन होती है एंड नॉर्मली इट इज़ 50% to 70% ऑफ किसी भी शख्स की सैलरी का 50% या 70% उसको दिया जाता है एज पेंशंस. Each factory has a cafeteria where the workers can eat 3 meals a day for 10 to 12 yuan a month. मंथली दे हैव टू पे 10 से 12 यौन और उनको 3 टाइम का खाना भी वहाँ मिलता है. कैफ्टेरिया टाइम टेबल इज़ टाइड अप विद कंपनी एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स भी होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैफ्टेरिया चलता है. नियरली all plants boost nurseries and kindergartens where children are looking after and fed under the control of a dietitian for a very modest sum. just $1 पे करते हैं फैमिलीज़ और उसके बाद उनको किंडरगार्टन या नर्सरी की सहूलत मिलती है. एंड दिस फैसिलिटीज़ इज स्पेशली फॉर वमेन हु आर वर्किंग वमेन जो काम कर रही होती हैं. So if they are empowering their women so much, so how is that possible that they will not give them facilities for their children? Definitely women will have children to look after. So when they are working, so they will be needing assistance. उनको help चाहिए होगी. तो जो औरतें काम करती हैं वर्कर्स होती हैं उनके लिए किंडरगार्टन्स और नर्सरीज़ होती हैं जहाँ वो अपने बच्चों को उस ड्यूरेशन के लिए छोड़ सकती हैं.
और वहाँ पे डाइटिशियन भी होते हैं जो बच्चों की ग़िज़ा का भी ख्याल रखते हैं, उन बच्चों को मेडिकल चेकअप करते हैं. फीमेल वर्कर्स आर entitled to 56 days rest on फुल सैलरी बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन. चाइल्ड बर्थ के दौरान उनको फुल सैलरी दी जाती है और 56 डेज़ हॉलीडेज़ दिए जाते हैं. When a low wage category worker finds he has to maintain a large family, his expenses make seizing. तो जब ऐसा मुलाज़म जिसकी सैलरी कम होती है और उसकी इनकम में वो अपनी लार्ज फैमिली को नहीं चला सकता, तो वो फिर क्या करते हैं कि उसकी सैलरी में इंक्रीज़ करते हैं, यानी उसको बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है हुकूमती सतह पर. The Chinese regime has set up an assistance system guaranteeing a minimum subsistence level बोलते हैं आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना. The company where the worker is employed then intervenes and raises his salary to equal the cost of living. अगर ऐसा वर्कर है जिसकी वेजेस ज़्यादा नहीं है लेकिन उनकी फैमिली बड़ी है, तो उनकी जो सबसिस्टेंस लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है ताकि उनका जो रहन सहन है उसको वो बरकरार रख सकें. The commune deals with those peasants having wages that are too low or who are unable to maintain their family owing to physical handicaps. या तो उनकी फैमिली किसी वजह से वो नहीं मेंटेन कर पाते अपनी लो सैलरी की वजह से, या अगर वो उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, फिज़िकली वो माजूर हो जाते हैं, तो भी कम्यून्स सिस्टम जो होता है, जो एक ग्रोही सिस्टम होता है, वो हेल्प आउट करता है उनको. इट यूजेस मनी फ्रॉम अ स्पेशली कंस्टिट्यूटेड फंड कंप्राइजिंग 2% ऑफ द कम्युनिटीज़ एनुअल वेज. ये एक ऐसा फ़ंड बनाया जाता है जिसमें से हर शख्स जो है अपनी सैलरी का 2% जमा कराता है. और ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी कभी किसी शख्स को ज़रूरत पड़ती है किसी भी किस्म की माजूरी की सूरत में, या फिर अगर वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, तो क्योंकि मंथली वो लोग 2% पे कर ईयरली वो पे कर रहे होते हैं, सालाना तौर पे वो 2% अपनी सैलरी का देते हैं एज इन फॉर्म ऑफ टैक्स. तो वही पैसे जो हैं वो पूरी कम्युनिटी के काम आते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है उनको. व्हेनेवर एनीवन नीड्स दैट असिस्टेंस उसको दी जाती है, और वो कोई भी हो सकता है. These assistance schemes in reality are rarely resorted to, क्योंकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं कि वो उनको ज़रूर उस सारे के सारी रकम को यूज़ भी करना पड़े. A family nearly always has more than one source of income, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन फिर भी उस फंड का होना बहुत ज़रूरी है उनकी वेलबींग को मेंटेन करने के लिए. इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स आर 8 hours a day, 6 days a week. Industrial, like in factories, the working hours are 8 to 6, leaving 1 day holiday a week. एक छुट्टी मिलती है उनको, and that is not necessarily Sunday. They can be given those holidays in any day of the week. Normally there is 1 week's annual vacation. In a year एक हफ्ते की छुट्टी होती है, 2 weeks if the worker lives far from his family, as well as 2 national holidays. Like national holidays भी होते हैं May 1 and October 1 को. And if a person is away from the family, अगर वो अपने घर से दूर है तो उसको 2 weeks की छुट्टी दी जाती है annually. There are two opposite worlds, just as the two ways of considering China's future are opposite. दो तरह की दुनियाएं हैं, दुनिया में दो तरह के सिस्टम है जो दुनिया को चलाते हैं. One is the rigid world of the figures and prospects based on economic facts as seen by the West, जो एक मगरबी तरीका है जो which is governed and which is controlled by facts and figures who just see things in 1 + 1 is equal to 2. ऐसा सिस्टम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अदाद व शुमार के मुताबिक चलता है, वो मगरबी दुनिया उसको फॉलो करती है. और एक दूसरा सिस्टम होता है विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ फेथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माउथ थॉट थ्रू आउट चाइना विद द लिटिल रेड बुक. उनके मजहबी और उनकी जो कल्चरल थिंकिंग है. दूसरा होप है, फेथ है कि अपने रिसोर्स पे इंसान फेथ रखे. और ये थिंकिंग आपको कहाँ मिलती है? चाइना में मिलती है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया. एज़ फॉर वेस्टर्न इकनॉमिक लॉज, द एंडलेस मैस ऑफ 800 million पीपल हु कैन बी कन्विंस्ड. ओके, अगर हम दुनिया की नज़र से देखें, मगरबी दुनिया की नज़र से देखें, तो वो बोलेंगे कि आपके पास 800 मिलियन लोग हैं, उनको आप कंट्रोल करें, गवर्न करें और उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लागू करें, उनको अपनी अंडर लेके आएँ, उन पर अपनी पावर असर्ट करें, उनको अपनी ग़ुलाम बना के रखें, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लोग कंट्रोल में आ जाएंगे. लेकिन अगर आप रीजनिंग विद द ड्राई यार्डस्टिक ऑफ फिगर्स, contribution of $1 from each Chinese would make roughly $800 million, and the contribution of day's work from each person would mean 2 million extra laborers for 1 year without
कॉस्ट टू द स्टेट। ओके, अगर आप अमेरिका या मगरब की निगाह से भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइनीज़ जो पे टैक्स पे करते हैं वो तकरीबन, अगर एक एक चाइनी अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा पे करता है, जो कि करता है, तो वह आपको $800 मिलियन मिल जाते हैं सिर्फ एक एक दिन के काम से। अगर थोड़ा सा भी काम ज़्यादा कोई चाइनीज़ लेबर करेगा तो कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी जो हुकूमती ख़जाना होता है उसमें, मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है एंड दे हैव यूज़ दैट पॉपुलेशन, दैट नंबर ऑफ़ पीपल इन फेवर ऑफ़ द कंट्री। उन लोगों ने अपनी आबादी को अपनी वर्क फोर्स में चेंज किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा वर्किंग हैंड्स हैं जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा दे रहे हैं। तो ना सिर्फ वो मुल्क के रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं बल्कि उनको इमेंसली बढ़ा भी रहे हैं। सो बेसिकली देयर पीपल आर देयर रिसोर्सेज। जैसे किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ के मादनियात पे होता है, मादनियाती वसाइल पे होता है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों पे होता है। तो चाइनीज़ लोगों ने अपनी तरक्की का इन्हिसार अपने लोगों की वर्क फोर्स पे किया, बिकॉज एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू देयर कंट्रीज़ प्रोग्रेस एंड दे डिपेंड ऑन मैन फोर्स rather दैन mechanical work. So every person is contributing to the progress of the country, so they are not burden, in fact they are the strength of their country. True to increase by just 1 meter per head the availability of cloth for even as few as 700 million Chinese. अगर आपको 700 मिलियन चाइनीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा या क्लोथ देना पड़ेगा तो आपको कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी? यू वुड नीड इनफ क्लोथ टू गो अराउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स। तो इतना ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप उस कपड़े को 18 बार पूरी दुनिया के गिर्द लपेटें, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और उनको इतना ज़्यादा ग्रेन यानी कि अनाज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 5 दिन में ही वो ख़त्म। पूरी दुनिया का अनाज अगर आप उनको खिलाएंगे तो वो सिर्फ 5 डेज़ तक ही इनफ रहेगा या 5 डेज़ की ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा, बिकॉज दे हैव सो मच इन नंबर, their population is so huge, but at the same time that population is not useless, they are not burden on the country's economy, they are increasing their economy because they are contributing into the business, industry, agriculture. So each and every person is giving and making money for the country. So the more people are, the more money they will make. जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा आबादी होगी, उन्होंने उस आबादी को मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल कर लेना, उतना ज़्यादा वो मुल्क अमीर होता चला जाएगा. The fact remains that when the number is not simply a juxtaposition of persons but a compact whole, then it tends to become power. अगर सिर्फ juxtaposition बोलते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन करना, तो ये जो नंबर और फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं चाइनीज़ लोगों की आबादी के लिहाज से, उन्होंने इस चीज़ को अपनी पावर बना लिया. दे हैव नॉट लेट इट बी देयर वीकनेस कि हमारी, अक्सर हमने सुना है कि ओवर पॉपुलेशन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज population is increasing day by day, there is less food, less resources, less water, less place to live. But this is not in the case of China. They have used their population in a very positive way that they are contributing and making money for the country. जितने ज़्यादा लोग होंगे घर में उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे. इनके ऊपर ये एग्जाम्पल एप्टली फिट होती है. When Mao says that it is the people and not things that are decisive, he is trying in fact to demonstrate that this concept, apparently destroyed by modern technology, is still a meaningful one. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आके इस चीज़ को निगेट कर दिया है कि लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पीपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. लेकिन माओ का जो ये मैक्सिम है और ये जो चाइनीज़ लोगों का जो एक स्लोगन है और तरीक़ाकार है, इन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया कि नो, पीपल डू काउंट, पीपल हैव मोर इम्पोर्टेंस दैन द थिंग्स. So we always should give importance to our resources than to mechanical things. This is the lesson of this story. The article on China gives us some insights as to how China has made phenomenal progress since independence in 1949. ये एक आर्टिकल है जो हमें बताता है कि how after their independence they have progressed so much. In the People's Republic of China is one of Pakistan's closest friends. We all know China is Pakistan's closest friend. हमारा दोस्त है, हमारा हमसाया है. She has provided both military and economic aid to our country. Whenever there was need, they have helped us. Whether जब हमें कोई किसी किस्म की माली इमदाद चाहिए थी, या मिलिट्री के सूरत में या फ़ौज की सूरत में कोई इमदाद चाहिए थी, she has resolutely stood by us in every crisis. As in 1965 and 1971, in these two wars with India, they have helped us. China had also firmly supported us in the United Nations
मे बी उन्होंने हमें सपोर्ट किया ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस. So they have helped us. Okay, now your next questions are, what are the social security benefits provided to Chinese workers? And your next question is, it is the people and not the things that are decisive. Discuss. Your last question of today's assignments, because today we have 3 questions. The heart of the matter is the need to root out selfishness. Discuss. You will discuss in the light of this chapter. So we will meet tomorrow with the new lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.